جلدی کرنا آپ کریں جی، نہ کیا کرتے ہو، آپ کے ہاتھ سے پڑے یہ کرنا جی. بہت اچھا جی، مبارک ہے، بہت بہت مبارک. چلیے یہ نرسری بہت اچھی بہت اچھی. یہ آگے LKG. السلام علیکم، یہ آپ کا اسٹاف ہے جی. بہت اچھا، مبارک ہے آپ سب کو بہت بہت. اقرا انٹرنیشنل اسکول پونچھ میں مہمانان وقار آنریبل اعجاز جان صاحب MLA حویلی پونچھ اور معزز اور محترم ہمارے ریجنل رضوان صاحب سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ اقرا انٹرنیشنل کا تھوڑا سا میں تعارف کرانا چاہتا ہوں. یہ اقرا انٹرنیشنل کس طرح سے جو وجود میں آیا اور کیسے آیا. آپ سبھی جانتے ہیں کہ اقرا انٹرنیشنل ان کا جو ہیڈ آفس ہے وہ بمبئی میں ہے. 2009 میں اقرا انٹرنیشنل اسکول کا جو قیام ہے وہ عمل میں لایا گیا. جو ہمارے چیئرمین محترم و مکرم ریاض انصاری دانے والا جو بمبئی کے رہنے والے ہیں، انہوں نے اقرا انٹرنیشنل کو کس طرح سے وجود میں لایا اور کیا مقصد تھا ان کا. ان کا سب سے پہلا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہمارے بچے آج بھی ہمارے بچے والدین سے اور بڑوں سے بالکل دور ہیں. وہ اپنے والدین کا احترام نہیں کر رہے ہیں. مطلب تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی وہ ایک دم سے بالکل ہم سے الگ ہو رہے ہیں. کیا بنیادی وجہ ہے؟ پھر جب انہوں نے سوچا اور ان کی یہ سوچ تھی کہ اقرا انٹرنیشنل اسکول کو ہم وجود میں لا رہے ہیں، سب سے پہلے ہمیں جو اس وقت دوری ہے، اللہ تعالیٰ کا جو مطلب اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، ہمارا جو مقصد تھا وہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. کووڈ کے پہلے سے ہی اس بات کی کوشش تھی کہ ضلع پونچھ میں بھی اقرا انٹرنیشنل اسکول کی ایک برانچ کھولی جائے. اقرا انٹرنیشنل کا تعارف جو ہے وہ آپ کے سامنے آ ہی چکا. میں تھوڑی سی کریکولم کے اوپر بات کروں. یہ اقرا انٹرنیشنل اسکول کی بکس ہے جو میرے ہاتھ میں ہیں. یہ مورل پبلیکیشن ڈیزائن کرتا ہے اور پرنٹ کرتا ہے، پبلش کرتا ہے، اور صرف اقرا انٹرنیشنل اسکول کے لیے یہ پبلش ہوتی ہے. اس میں جو اکیڈمک سبجیکٹس کا جو کانٹینٹ ہے وہ CBSE پیٹرن پہ ہے. یہ کانسیپٹ 6+6 بکس کا ہے. 6+6 بکس یعنی 6 اکیڈمک کی بکس ہوں گی پورے سال کے لیے اور 6 عربک کی بکس ہوں گی. مطلب اب ان کو پڑھایا کیسے جائے گا؟ پہلے بک نمبر 1 ایک مہینے میں ختم ہوگی یا 35 دن لگتے ہیں، اس کا ایگزام ہو جائے گا. پھر بک نمبر 2 عربک اور اکیڈمک سٹارٹ کی جائے گی. اسی طرح سے بک نمبر 3 اور بک نمبر 6 تک یہ ساری کلاس کا سلیبس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کا سب سے پہلا جو بینیفٹ ہے وہ بچے کو کیا ہوتا ہے؟ آپ کے بچے کو مہینے بھر کے لیے یہ وزن ساتھ لانا ہے اسکول میں. اس کے علاوہ ایک اردو کی بک ملے گی اور ایک 3-in-1 نوٹ بک لانی ہے. پینسل بچے کو اسکول لانی نہیں ہے. ہر منڈے کو آپ بچے کو پینسل ساتھ دیں گے، وہ ہم اسکول میں رکھیں گے، ہفتہ بھر اسی کو چلائیں گے. آپ مہینے کی پہلی تاریخ کو ایک اریزر اور ایک شارپنر بھیجیں گے، وہ ہم اسکول میں رکھیں گے. پورا مہینہ آپ کو اریزر اور شارپنر اسکول نہیں بھیجنا. بچہ روز گھمائے گا نہیں، بچہ روز پینسل شارپ کر کے گم بھی نہیں کرے گا اور گڑے گا بھی نہیں. دوسرا بینیفٹ جو ہوتا ہے اس بک کا، اس ایک ہی بک کے اندر انگلش بھی ہے، میتھ بھی ہے، GK بھی ہے، پوئم بھی ہے، سٹوری بھی ہے، کانورسیشن بھی ہے اور
सारे सब्जेक्ट्स एकेडमिक के जो हैं वो इस एक बुक में कवर हो जाते हैं 1 महीने के लिए। इसी तरह से जब हम अरबिक बुक की बात करेंगे, अरबिक बुक में तजवीद मखारिज जिसे हम नूरानी कायदा कहते हैं वो कायदा कंप्लीट हो जाता है। तहफीज, बच्चों को सूरत ज़बानी याद कराई जाती हैं, दुआ, हदीस, अस्माउल हुस्ना, सूरह नेम, अरबिक वोकैबुलरी, अरबिक कन्वर्सेशन, अरबिक पब्लिक स्पीकिंग, ये सारा इस एक बुक के अंदर कवर हो जाता है। मैं इस स्कूल के बारे में 2-3 पॉइंट सिर्फ बोलूंगा। देखिए, आपने यहाँ पे अपना जब सिलेबस आप डिस्कस कर रहे थे तो आपने कहा कि हम सिर्फ चाहते हैं कि सिर्फ हजरत फातिमा का नाम हो, हजरत अली का नाम हो। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप हजरत अली का नाम रहे हैं तो फिर यजीद का नाम भी बताइए कि यजीद की क्या बुराइयां समाज में रही जिससे हम उनको नफरत करते हैं। अगर आप गांधी का नाम ले रहे हो तो आपको गोडसे का नाम भी लेना है कि गोडसे ने क्या बुराई की थी जिसकी वजह से हम गोडसे को बुलाना चाहते हैं। क्योंकि जब तक आप हिस्ट्री बच्चों को नहीं दिखाओगे तो सिलेबस पूरा मुकम्मल नहीं होगा। कि ये इल्तिबास कब से पैदा हुआ, खासतौर से बांडे साहब से मैं मुखातिब हूँ कि दीनी और दुनियावी तालीम के दरमियान जो दूरी है और जो ये तसव्वुर है ये कब से पैदा हुआ। ये हमारे दौरे गुलामी की ईजाद है। हकीकत ये है कि दीन और दुनिया की तालीम का कोई फर्क इस्लाम में मलूज नहीं रखा गया। सारी तालीमें अपनी जगह जरूरी हैं। लॉर्ड मैकावले ने जब हिंदुस्तान के अंदर एक तालीमी निज़ाम दिया और उसका बुनियादी जो मकसद था उसने एक सर्वेंट क्लास बनानी थी यहाँ पर गुलामों की, और उसके लिए उसने जो डिजाइन किया तालीम को वो उन जरूरतों को पूरा करती थी। और यही वो सबब था कि दीनदार लोगों ने अपने दीन को और अपने इल्म को और अपनी सकाफत को बचाने के लिए मदारिस और मस्जिदों का सहारा लिया। और प्यारे बच्चे, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम। आज बहुत ही खुशी का मकाम है कि इकरा इंटरनेशनल स्कूल जिसका आज फॉर्मल इनॉग्रेशन है, फॉर्मल ओपनिंग है, मैं आज की इस ओपनिंग पे मैनेजमेंट को और प्रिंसिपल को, यहाँ के स्टाफ को और प्यारे बच्चों को दिली तौर पे बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जिस तरीके से यहाँ बातचीत चली, दिल तो अभी कर रहा था कि यहाँ पे 1-2 घंटे सुनो, क्योंकि जब आप किसी को सुनते हो तो उससे कुछ सीखते हो। और छोटा बड़ा कोई दुनिया में नहीं होता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिसको अगर छोटा सा बच्चा भी कोई आपको अच्छी बात कहता है तो उसको भी हमें सीखना चाहिए। और एक तालीम और नॉलेज ही एक ऐसी चीज है जिसकी कोई लिमिट नहीं। कोई दुनिया में ये नहीं कह सकता कि उसको पूरा इल्म। तो हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए हर उम्र तक, जब तक अल्लाह ताला ने आपके होश आवाज़ ठीक रखा, आपकी जिंदगी रखी, हमें सीखना है और सीख के ही आगे बढ़ना है। आज इकरा स्कूल की जो ओपनिंग हुई, जो हमारे रीजनल इनके हेड्स थे, उन्होंने बाकी हजरात ने जो बात यहाँ पे कही, तो स्कूल की में जो सिस्टम इन्होंने यहाँ पे आज बताया कि किस तरीके से यहाँ पे एजुकेशन होगी, बच्चे किस तरीके से आएंगे। अब यकीन मानिए, जब मैंने वो सारा सिस्टम सुना कि स्कूल में बच्चे आएंगे, पेंसिल ऐसे होगी, बुक ऐसे रहेगी, तो मुझे लगा कि ये उस तरीके से डिजाइन किया गया है स्कूल का सिस्टम जिस तरीके से पेरेंट्स चाहते हैं। और उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि अमूमन छोटे बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो सबसे बड़ी पेरेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि अगर वो 10 पेंसिल लेके जाते हैं तो एक ही वापस पहुंचती है, और अगर वो रबर और शार्पनर लेके जाते हैं तो वो स्कूल में ही या तो फेंक देते हैं, घुमा देते हैं, या रास्ते में, क्योंकि छोटे बच्चे हैं बैग में नहीं रख सकते, तो अमूमन उन बच्चों को वो परेशानी रहती है। पेरेंट्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि पेरेंट्स के लिए बच्चे ही उनकी जिंदगी होती है। पेंसिल और रबर और शार्पनर कोई इतनी अहमियत नहीं रखती। लेकिन जब इन्होंने ये बात यहाँ पे कही स्टेज पे, तो उस बात में एक वजन है। वजन क्या है? पेरेंट्स के लिए कोई पेंसिल और शार्पनर कोई इतनी अहमियत नहीं रखती, वो 100-200 भी ले सकते हैं।
लेकिन उस क्लास में, नर्सरी की क्लास में, अगर पेंसिल की और रबर की और शार्पनर की अहमियत और उसकी कीमत अगर बच्चे के जहन में आ जाए तो मैं समझता हूँ बाकी उम्र में उसको कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है। और वो पूरी जिंदगी, चाहे वो 100 रुपए हो, 10 रुपए हो, 10 लाख हो, या वो कल करोड़पति भी इंशाल्लाह जब वो बनेगा तो उसको उस पैसे की अहमियत का पता होगा, क्योंकि बचपन से ही उसने वो सीखा होगा। मैं बहुत खुश हुआ। और साथ ही साथ जो आपने इस्लामिक तरीके से पढ़ाने का सोचा, क्योंकि मुझे मौका मिला 3 बार सऊदी जाने का, मैं बाहर भी बहुत जगह गया, तो जो मैं ये समझूंगा कि जब मैं सऊदी में मैंने 2-3 बार बच्चों को देखा, तो मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ जब ट्रेवल कर रहा था तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर कितना अच्छा सिस्टम है यहाँ के स्कूलों का, बच्चे कैसे आ रहे हैं, बच्चियाँ कैसे आ रही हैं, हिजाब लगाया है, पढ़ने का तरीका बाकी। तो मैं उनको कहता, मैं कहता सर हमारे भी कभी ऐसा अगर आए तो कितना अच्छा सिस्टम रहेगा। लेकिन मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला ने वो बात सुनी और आज इकरा स्कूल यहाँ पे आया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे बच्चों को उस तरीके से, मैं नहीं कहूँगा 100% ये कर सकते हैं, मैं नहीं सोचता 100% ये करेंगे या 90% करेंगे। अगर इन्होंने शुरुआत 10% से की है तो इंशाल्लाह 5-6 सालों के बाद आप देखेंगे यही 10% जो है ये तब्दील होगा 100%।